दिसते का? Okay, give heading. New point we have to discuss in today's lecture. That is Q. पुढे बसा. Give heading Q. We had seen stack. Now we have to see Q. अरे पुढे ना. Tell me definition of stack. What is stack? Anyone? What is stack? Online, offline? लॉग इन करना. जे ऑफलाईन वाले आहेत त्यांनी लिंक जॉईन करा. म्हणजे स्क्रीन तुम्ही तिथे पाहू शकता. फक्त ऐका. हेच दिसणार आहे. रिक्वेस्ट सेंड करा पटपट. गिव हेडिंग क्यू. झाले का? सभी ने रिक्वेस्ट सेंड किए. हो गया आपका? Shall I start? In last lecture, we had seen stack. Actually, definition of stack is it is a linear data structure in which insertion and deletion is done by using only one end. That end is called top. Okay, and that structure is called stack. Then now we have to see queue. Actually, see what is the difference between stack and queue. In stack, there is only one end. So suppose if you want to insert or if you want to delete the data from the stack, then we have to use only one end. मतलब हमें stack में data insert करना है या delete करना है, तो इसके लिए हम एक ही end use करते हैं. And what is the name of that end? Top. But suppose if you want to insert the data into the queue, then we have to use one end. That end is called rear. That end is called rear. And suppose if you want to delete the data from the queue, then we can use, that means we have to use another end. Its name is front. Two ends are there. One is rear and second one is front. Then see what is the definition of queue. Listen. A linear data structure in which insertion is done by using one end. That end is called rear. And deletion is done by using another end. That end is called front. Such a data structure is called queue. वो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें डेटा एक एंड से इंसर्ट किया जाता है, दैट एंड इज कॉल्ड रेयर, और दूसरे एंड से रिमूव किया जाता है, दैट एंड इज कॉल्ड फ्रंट. ठीक है, उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्यू. ए लिनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन इज डन बाय यूजिंग वन एंड, दैट एंड इज कॉल्ड रेयर, and deletion is done by using another end, that end is called front. Such a data structure is called queue. Is it clear? Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then see what is the characteristic of stack. The characteristic of stack is, tell me, characteristic of stack. On which principle stack is running? Sir, LIFO. LIFO. Last in, first out, or first in, last out. Then see the characteristic of queue. FIFO. What is it? First in, first out. जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो पहले ही रिमूव किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? FIFO. That is first in, first out. Okay. Then say actually queue is a pipeline technique. वो पाइपलाइन टेक्निक जैसे ही है, जैसे कि पाइप में हम डेटा इंसर्ट करते हैं या जो डेटा इंसर्ट किया जाता है वही फर्स्ट आउट हो जाता है. दैट टेक्निक इज कॉल्ड पाइपलाइन टेक्निक. एंड queue is running
like pipeline technique. And what is its characteristic? Its characteristic is FIFO, that is a first in, first out. That means queue is running on FIFO manner, that is on FIFO principle. Is it clear? ठीक है, कौन से दो एंड रहते हैं क्यू में? रेयर एंड फ्रंट. कौन से एंड से डेटा ऐड किया जाता है? रेयर से. कौन से एंड से रिमूव किया जाता है? फ्रंट से. कौन सा प्रिंसिपल उसमें यूज किया जाता है? FIFO. उसका मीनिंग क्या? पाइपलाइन टेक्निक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. और कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर. ओके, देन राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट. पहले डेफिनेशन लिखो. सगळे बंद करून टाक फॅन. राइट डाउन डेफिनेशन. A linear data structure in which, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं आज गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने वाला हूँ. मतलब क्या क्या अपलोड होगा? जितने सारे प्रैक्टिकल स्लिप्स है, ऑल प्रैक्टिकल स्लिप्स आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम. ठीक है, विथ क्वेश्चन. तो आपको क्या करना है? जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनके लिए आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो. जैसे आपने सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, सिमिलरली वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. सॉल्यूशन आपको मिलेगा. और जितना सारा हुआ है पार्ट वो सब अपलोड करूंगा, या जितने सारे पीपीटीज अभी मेरे पास है, ऑल दैट आई कैन अपलोड. ठीक है, राइट डाउन डेफिनेशन. ए लिनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन इज डन. ये लिखा तो भी चलेगा, यही डेफिनेशन है. A linear data structure in which insertion is done by using one end. Insertion is done by using one end called rear, R-E-E-R, called rear, and deletion is done by using one end, and deletion is done by using one end called front, Such data structure is called queue. Such data structure is called queue. Full stop. Queue is running on FIFO principle. Queue is running on FIFO, first in, first out. FIFO principle. First in, first out. Full stop. It is pipeline technique. It is pipeline technique. It is pipeline technique. Then draw this diagram. That is not a diagram, but it is like a diagram. Draw this. AB rear is pointing here and front is pointing to the -1. क्या मैं explain करता हूँ? Okay. Now see, initially the value of front and the value of rear is -1. That we have to take. Means we have to initialize front and rear, both the variables, by a value -1 like top. If the value of rear is -1 or the value of rear is equal to front, then we can say queue is empty. See what I'm telling? If the value of rear is -1, then we can say queue is empty. Second case, if the value of front and value of rear is same. Now initially the value of front is -1 and the value of rear is also -1. Then in this case queue is empty. बहुत सारे कंडीशंस है, मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा. इनिशियली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर,
If the value of rear is -1, then Q is empty. So sang, when we can say Q is empty? Our second condition. Bol. Only one. तुला लक्ष द्यावं लागेल ना, लक्ष दे बस. If the value of rear is -1, then you can say Q is empty. Okay. अभी एक कंडीशन याद रखो. If the value of rear is -1, then Q is empty. And if the value of rear is size -1, if the value of rear is size -1, then Q is full. If the value of rear is size -1, then Q is full. Hello, are you getting? Any problem? Online? No, sir. Okay. No, sir. Then write down both the conditions. ये आपने ड्रॉ किया है. Then write down both the conditions. If the value of rear is -1, then Q is empty. And if the value of rear is size -1, then Q is full. साइज -1 है तो फुल है, -1 है तो एम्प्टी है. यस. पेरेंट्स लेटर उद्या घेऊन येशील कधी लय. ओके. दरवाजा बंद कर. If the value of rear is max -1, that is size -1, then Q is full. And if the value of rear is -1, then Q is empty. Yes. Now see. Okay. Initially, the value of rear and front is -1. Initially दोनों के value क्या है? -1. Okay. Now what I have to do? I have to insert the data, insert an element into the queue. तो ऐड करने के लिए मैं कौन सा एंड यूज करने वाला हूँ? रियर एंड. तो देखो मैं क्या करने वाला पहले. इनिशियली द वैल्यू ऑफ रियर इज -1. नाउ आई वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द क्यू. तो दिस इज एन एरे. ये जो है वो आपका एरे है. देन व्हाट इज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे? 0. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियर नाउ? -1. Okay, then first what we have to do, we have to make or we have to increase rear by 1, then after increment it becomes 0. -1 में +1 आपने ऐड किया तो क्या बन जाता है? 0. तो पहले आपको rear को 0 करना है. Then what we have to do, rear plus plus. Initially it is -1. If you increase it by 1, then it becomes 0. Now rear pointing to the first block. When if you increase it by 1. Now rear is here and suppose name of an array is A. जैसे हमने स्टैक के लिए किया वैसे ही है. सपोज array का नाम A है तो हम कहाँ डेटा ऐड कर सकते हैं? A of rear. कहाँ ऐड कर सकते हैं? A of rear. Because what is the value of rear? 0. तो A of rear में जो डेटा हमने एक्सेप्ट किया है that data we can store here. Suppose enter data is A. So that data will get stored at 0th location, that is at rearth location. जहाँ rear point कर रहा है उसी point location को point करेगा. Here the value of rear is 0 plus करने के बाद. Now rear is here. After that again suppose if you want to insert one more element into the queue, then again what we have to do? We have to again increase the value of rear by 1. Then suppose now it is 0 plus it becomes 1. So rear की value 1 हो जाएगी. Then we can insert data here. Now suppose B. Now rear is here. Again suppose if you want to insert one more element, then again we have to increase the value of rear by 1. Rear plus. Now it becomes 2. Now rear pointing to this location. अब हमारा rear इधर है. Any problem? No problem. Now next,
Suppose now the size of that queue is 3. So 3 elements I have inserted in this. Now queue is full. बराबर. अभी ये 0 है, सपोज इसकी साइज 3 है, ये 0, ये 1 और ये 2, मतलब साइज 3 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगी? 2 होगी. देन क्यू फुल है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन मिल गई? रियर इक्वल टू साइज -1. रियर कहाँ पॉइंट कर रहा है? इस लोकेशन को. व्हाट इज दैट इंडेक्स? ये इंडेक्स क्या है? 2. वो इंडेक्स क्या है? 2 है. एंड व्हाट इज साइज? 3, मतलब साइज -1. नाउ रियर इज पॉइंटिंग टू द साइज -1. देन क्यू इज फुल. मींस आफ्टर दैट वी कैन नॉट इंसर्ट द डेटा इनटू द क्यू. ये क्लियर हो गया. Now front is pointing to the first location. Not, sorry, it is pointing to the -1. Then suppose queue is running on principal FIFO, first in first out. तो पहला कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसमें कौन सा एलिमेंट फर्स्ट इन हुआ है? ए. बराबर. कौन सा इन हुआ है? ए. तो क्या करना पड़ेगा? इसको ही पहले रिमूव करना पड़ेगा. तो एंड करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सा एंड है? फ्रंट. देन यहाँ फ्रंट की इनिशियल वैल्यू क्या है? -1. देन पहले हमें कहा क्या करना पड़ेगा? उसको हमें कहाँ पॉइंट करना है? इस लोकेशन पे. तो फ्रंट को क्या करना पड़ेगा? इट इज -1. उसको हमें 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस प्लस प्लस. Then if you increase the value of front by 1, then it becomes 0. Then it point to the first block. Then you can remove the data. Data equal to A of front. ओके. और मतलब ए ऑफ फ्रंट का मीनिंग क्या? इसमें से जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हम डेटा वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. इज इट क्लियर? डेटा इक्वल टू ए ऑफ फ्रंट. नाउ फ्रंट पॉइंटिंग टू द 0th लोकेशन. तो डेटा इक्वल टू ए ऑफ फ्रंट मतलब क्या? फर्स्ट एलिमेंट वी आर स्टोरिंग इनटू द डेटा वेरिएबल. तो हमें क्या दिखाना है? वो रिमूव हो गया. देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रंट बाय 1. तो फ्रंट को प्लस प्लस करो. तो फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा? इस लोकेशन को. और ये एलिमेंट क्या होगा? ऐसे दिखाई दिया जाएगा कि बाबा ये रिमूव है. इज इट क्लियर? मतलब रिमूव करने के लिए हम कौन सा इंड यूज कर रहे हैं? फ्रंट. और इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा इंड यूज कर रहे हैं? रियर. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सभी सीक्वेंशियली हो जाता है. डिफरेंट टाइप्स के क्यूब है, उसमें प्रायोरिटी क्यूब भी है. और ये जो क्यूब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट क्यूब इज कॉल्ड लीनियर क्यूब. उसका कौन सा नाम है? लीनियर. मैं टाइप में आपको एक्सप्लेन करूंगा. एनी प्रॉब्लम इन इंसर्शन एंड डिलीशन? नो. नाउ नेक्स्ट. उन्होंने वही दिखाया है. देन सी वन डिफरेंस शोन हियर, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू. एक्चुअली दैट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट. 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू. Then that 4 points we have to write. See what is first? It is LIFO structure. What is its meaning? इसका मीनिंग क्या है? Last in first out. And what is this? FIFO. First in first out. Then stack is open at one end. Means it is a linear data structure in which insertion and deletion is done by using only one end. That end is called top. मतलब stack के लिए एक ही end रहता है. And what is the name of that end? Top. And queue के लिए कितने सारे ends रहते हैं? 2 ends are there. What is the first one? Front. What is second one? Rear. For data insertion, which end we have to use? Rear. And for deletion, front. Okay. Then elements are added and removed from same end. ये तो मालूम है. Elements are added by using rear end and deleted by using another end. तो अलग अलग end यूज किए जाते हैं. Then what are the basic operations we can perform on this stack? 2 operations. First one is push. Second one is pop. Then क्या है? 2 operations are there. Add or you can say insertion. Insertion and deletion, or insert and delete. The next one, top moves in both direction, hence vacant positions are reused. Front and rear move in one direction only. Okay. अब इसमें देखो क्या रहता है. स्टैक में हमने देखा है एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए एक ही एंड है, उसका नाम है टॉप. डिलीशन के लिए भी एक ही एंड है, उसका नाम है टॉप. तो इसमें ना जो स्पेस रहता है वो स्पेस एम्प्टी नहीं रहता है, वेस्ट नहीं हो जाता है इन स्टैक. बट क्यू में ऐसा नहीं है. देखो यार यही है. पहले हमने यहाँ कौन सा एलिमेंट ऐड किया था? ए. देन बी, देन सी. सपोज 3 एलिमेंट्स थे. देन सपोज इफ यू डिलीट फर्स्ट एलिमेंट, ये आपने रिमूव किया, देन दैट स्पेस इज एम्प्टी नाउ. ओके. एंड बी एंड सी और डी उसमें डेटा है, मतलब
वन पोजीशन में जो एलिमेंट है उसमें डेटा है, सेकंड पोजीशन में डेटा है, थर्ड पोजीशन में डेटा है, एंड रियर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट लोकेशन. ऐड करने के लिए कौन सा एंड है हमारे पास? देयर इज ओनली वन एंड. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंड? रियर. तो insertion, for insertion in a queue, we have to use only one end. Its name is rear, and rear is pointing to the last element. And for deletion, which end we have to use? Front, and front is pointing to the first location. हमने एलिमेंट रिमूव किया ये वाला, अभी फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो ये जो स्पेस है, वो जो ब्लॉक है, वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया, एम्प्टी है, उसमें डेटा नहीं है. तो ऐसे क्यू में हो सकता है, स्टैक में नहीं. दैट इज लास्ट पॉइंट. एनी प्रॉब्लम? Any problem in difference between stack and queue? Any problem? Hello? No, sir. Okay. आपको लिखना है, लिहायचं तिला पटकन लिहा, 4 मार्क्स मिळतील असेच आहेत. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इंटरेस्टिंग. बहुत लेंथी सब्जेक्ट है. सी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन इट्स वेरी सिंपल. वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. Those who have taken one dose of vaccination, they can come for the offline practical. आप offline practical के लिए आ सकते हो. But while coming, what you have to do? We have to bring your parents' consent letter. If you have that letter, then you can come with one dose vaccination certificate. Only for offline practical, not for theory. आपको लग रहा है कि कॉलेज चालू हो गया, देन हमारे तो हमें अंदर नहीं ले रहे. एक्चुअली हमें तो बुरा लगता है कि आप लोग अंदर नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन दी है वो फॉलो करनी पड़ेगी. सो ऑल ऑफ यू हैव टू ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स. विदाउट डॉक्यूमेंट्स वी कैन नॉट अलाउ यू.
एग्जाम्पल हो गया. राइट ए सी प्रोग्राम. राइट ए सी प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ. तू नहीं लिख रहा है क्यों? अरे लिखना है. तो ऑफलाइन में नहीं लिख रहा है तो ऑनलाइन में क्या 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 होगा तूने? राइट ए सी प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ linear queue. For the implementation of linear queue. For the implementation of linear queue. Write with me. मैंने प्रोग्राम टाइप करके लाया और यहाँ आपको दिखाया तो चलेगा क्या? कहीं तो टाइप करूं. कैसे झालेलं ओके. Write with me. Yes. देखना पड़ेगा ही क्या? आपने टाइप किया तो दिखा होता ना उधर. ओके. यस. Screen is visible to you all. Hello, is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Write with me. You can give name, add or insert any name. Can give.
नको ना नको. एक काम करू कॉलेज करून येतो उद्या नाही का? 4 वाजता मग काय करायचं अगोदर? Data variable we have to declare here. अरे गाडी सकाळी परवा 8 वाजता कांगोशोत लाडे गवला ऐका ना तुम्ही ज्यांच्याकडनं जमीन घेतली होती ना हा त्यांचं काय नाव आहे म्हणले अळवळ मीना अळवळ बरं मला एक सांगा ना ते आता राहायला कुठे तळेगावला राहिलेत का ते तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत का त्यांना तुम्ही ते डॉक्युमेंट मागू शकता का ते नंबर दिलाय तो 12ला कारण की ना आत्ता परत त्याचा SMS आला वकिलाचा की सिस्टमला एररच आहे त्या गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईटला आणि ते काय होतंय तुमचं जे रिपोर्ट बनतो ना वकिलाचा त्यासाठी ते डॉक्युमेंट लागते त्याला वाचायचं आहे ते वाचून मग तो काय बघल तसा रिपोर्ट बनणार ते काय तुमच्या खरेदी खतमध्ये अटॅच पाहिजे पूर्ण डॉक्युमेंट त्याचं नाही का पहिल्या मार्काचं हां पण ते अटॅच नसल्यामुळे आता त्याला ती अडचण येते आणि नेमकं सिस्टमला एरर आहे त्याला आपण 500 रुपये सेंड करून तिसरा दिवस आहे तर त्यासाठी ते रिपोर्ट त्याला आपल्या त्या ऑफिसला सबमिट करता येणार मेलवरती तो लगेच सबमिट करा ते डॉक्युमेंटचं त्याला भेटलं ना तो म्हटलं मला आत्ताचं प्रोव्हाइड केलं तर मी देतो म्हटलं 10 मिनिटात रिपोर्ट पाठवून देतो लगेच ते डॉक्युमेंट मला हातात यायला म्हणून मी शांत बसलो एक काम करता तुम्ही मी काय म्हणतो तुमचे जे ते आहेत ना मालकीन मीना कोण त्यांना एक फक्त म्हणावं की मॅडम मला जरा अशा अशा अडचण आली म्हणा एकदा तुम्ही व्यवस्थित तुमचे जे डॉक्युमेंट आहेत त्याचं स्कॅन करून मला पाठवता का म्हणा मोबाईलमधनं का माहिती आहे का
असल्या इकडे तिकडे बघत गप्पा नका मारतोस. त्याच्याशी बोललो तर मग ह्या पैसे देईल का रिटर्न परत कस्टमर आपल्याकडे काय म्हणजे कुणाला पाणी प्यायचे ली कारण हे ली की हा हे माणूस महत्वाचं आहे, आपण पाणी महत्वाचं नाही. चेक करून सांगतो मला. ठीक आहे, बरं तू एक काम कर, ते कसं होतं बंद लिहिलंय. आपण कॉल बॅक करतो, निघतंय का नाही बघू दे. One more function I have added in this INI for the initialization of front. क्योंकि वो एक्सप्लेन करता हूँ. दिलेली आपण ऑर्डर माहिती आहे आणि ॲडव्होकेट मानिले त्याचा सर ऑफिसला आहे. एक काम होतं, एक आपण एक आपलं चेन जुनं म्हणजे आधी सर्व त्याच्याकडनं जागा घेतली डॉक्युमेंट काढायला लावलं होतं वकिलांनी. पुण्याचा ॲडव्होकेट आहे का फायनान्स कंपनीचा नाही का, Yes. त्याने आपल्याला ते डॉक्युमेंट काढायला लावलं तर आपण त्याला सांगितलं तुम्हीच काढा. एक 5 मिनिट हा. दिवस चेंज केले, तिसरा दिवस नाही का, तर तो म्हणतोय की ती एरर येतो साईडला. Is it done? Hello. आपने लिखा है. Hello. Am I audible? Yes. ठीक है. Now I am compiling this application. There is one error. What is that? Data remove. REMOVE int. REMOVE. Front plus plus. Yes.
एक मिनट. -1 parent plus your parent. Parent. थांबा लावलं ना मी आलेच. वर्ष आणि नंबर सांगितले होते. त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणलं की कोणाकोणाच झाले. If choice is 1, then enter the data. Then 11, then again choice is 1, then 12, choice is 1, then 13. Okay, 3 elements I have inserted in this. Now my choice is 3 for displaying the data. Then see the data 11, 12 and 13. कुठे बघताय? 11, 12 and 13. That is inserted data. Then suppose if I want to remove the data from the queue, then which element should remove first? First one, that is 11. Then suppose my choice is 2. Then see deleted element is 11. That message is displaying. Then again my choice is 3. I want to check remaining elements from that queue. Then see output is 12 and 13. Any problem in input and output? Okay, tomorrow I will explain. Now choice is for termination. Okay, tomorrow I will explain. And put your roll number into the chat box and then you can leave the meeting.